Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 13, Mahatma Gandhi and the National Movement, Civil Disobedience and beyond. My dear student, this chapter is very important for you, important for your exams, term 2, because in this chapter there are so many questions that will be in your paper. That time is important for the Indian history because that time is 1917 to 1947. That is called the Gandhian era. The major movement was happened during that time. My dear, today we will also discuss the biography of Mr. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, because before the discussion of Mr. Gandhi's biography, we cannot understand their movement, we cannot understand the weapons which was adopted by Mr. Gandhi in their campaign, and also the approach of Gandhi for the Indians against Britishers. So, my dear, let's start your chapter. In the introduction section, that is very clear कि नेशनलिज्म जो है, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। ये परिपाटी विश्व के कई सारे देशों में हमें विश्व के इतिहास में भी दिखाई देती है। इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिज्म, a single individual is often identified with the making of a nation. Thus, for example, we associate the Garibaldi with the making of Italy, George Washington with the American War of Independence, and Ho Chi Minh with the struggle to free the Vietnam from colonial rule. In the same manner, Mahatma Gandhi has been regarded as the father of the Indian nation. My dear, the one question that will arise in your mind, that why Mr. Gandhi called father of nation, you can give the answer. The introduction part of this chapter, the first line, in the history of the nationalism, a single individual is often identified with the making of a nation. We had discussed the various examples: Garibaldi, George Washington, Ho Chi Minh. It proved that the one person that can identify the nationalism of particular that country. तो ये दो चीजें हैं, इसीलिए भारत को एक ऐसा देश कहा जाता है जहां पे महात्मा गांधी को नेशनल हीरो के रूप में हम अडॉप्ट करते हैं. माय डियर, इन सो फार एज गांधी वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रिवॉर्ड ऑफ ऑल द leaders who participated in the freedom struggle. That characterization is not misplaced. However, like Washington or Ho Chi Minh, Mahatma Gandhi's political career was shaped and constrained by the society in which he lived. For individuals, even great ones are made by history, even as they make history. कहता है, चूंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित हैं, अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विश्लेषण फादर ऑफ नेशन गलत नहीं है. हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन्ह की तरह महात्मा गांधी का
पॉलिटिकल कैरियर, राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों न हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. When you will read this line, when you will analyze this line, you can easily understand that why we read history and importance of history. For individuals, even great ones are made by history even as they make history. This chapter analyzes Gandhi's activities in India during the crucial period 1915 to 1948. It explores his interaction with the different sections of the Indian society and the popular struggle that he inspired and led. It introduced the student to the different kind of source and the historians use in the reconstructing the career of a leader and out of the social movement that he was associated with. My dear, अब यहां से क्लियर करता है कि इस चैप्टर में 1915 टू 1948 में हुए परिवर्तनों को महत्वपूर्ण समय के दौरान गांधी जी के गतिविधियों का हम विश्लेषण करेंगे इस चैप्टर में। कहता दिस चैप्टर एनालिसिस गांधीज एक्टिविटीज इन इंडिया ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड ऑफ 1915 टू 1948. वी आर गोइंग टू रीड दैट टाइम पीरियड 1915 टू 1948. That period is called Gandhian era. Okay? So there should be no doubt when the examiner asks you that time period of Gandhian era, without any hesitation, you can say that 1915 to 1948, that time period is the Gandhian era. It explores his interactions with the different sections. Gandhi, no doubt to say that, he interacted with the every and each section of the Indian society. Either they were Dalit or Muslims or the upper class or the lower class or the middle class. Either they were traders or the poor, prosperous or unemployed, students or jamidar. Everyone interacted with the Gandhi during their movement. अब यहीं से कहता है कि भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन इस चैप्टर का करता है। इस चैप्टर में स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रकार के सोर्स को भी रखने का प्रयास किया गया है, जिसका प्रयोग इतिहासकार गांधी जी के जीवन वृत्त को समझने, उनके आंदोलनों को बताने, उन चीज़ों को सही तरीके से पब्लिक के सामने रखने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। सोर्स पे भी चर्चा की गई है। कहता है कि इट इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू द डिफरेंट काइंड ऑफ द सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस यूज द रिकंस्ट्रक्टिंग द कैरियर ऑफ लीडर एंड ऑफ द सोशल मूवमेंट दैट ही वाज एसोसिएटेड विद। हियर अ पिक्चर, हैविंग सीन दिस पिक्चर, व्हाट डू यू थिंक? That a lot of people, a huge amount of population assemble one place. Why? Because Gandhi's movement was started. ये पिक्चर गांधी जी का 1930 में लिया गया साल सत्याग्रह के समय का है, जब साबरमती नदी के किनारे आश्रम के निकट समर्थकों से गांधी जी बात कर रहे थे। अब लोगों को लगने लगा था कि गांधी जी किस तरह देश को आज़ाद कराएंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले, इस मूवमेंट को शुरू करने के पहले, अ लीडर ऑफ अनाउंस हिमसेल्फ, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द गांधीयन आइडियोलॉजी। वी हैव टू थिंक अबाउट द हु वाज गांधी। गांधी कौन थे? गांधी जी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ओके माय डियर, अब गांधी जी को अगर जानना है सबसे पहले, तो गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्हें मोनिया के नाम से भी पुकारा जाता था। इनका जो निक नेम था वो मोनिया भी था।
in the childhood time. It was called Monia. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। पोरबंदर उस समय सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता था, जहां गांधी जी का जन्म हुआ। पोरबंदर, दैट इज द हिस्टोरिकल प्लेस। हियर I want to inform you that Porbandar is situated in Gujarat and Dwarka is also situated in Gujarat. The Porbandar is known during that time as a Sudamapuri also. अब महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी उर्फ काबा गांधी था, जो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर राज्य के दीवान या प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके थे। गांधी जी की मां पुतलीबाई काबा गांधी की चौथी पत्नी थी, करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। गांधी जी का विवाह एक ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, गोकुलदास माकन जी की पुत्री कस्तूरबा के साथ 1883 में हुआ। गांधी जी के 4 पुत्र हुए, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। 4 पुत्र गांधी जी के हुए। इन चारों पुत्रों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमें सिर्फ गांधी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करना है। हम यहाँ पे एक आपको गांधी जी के प्रारंभिक जीवन और उनके पारिवारिक जीवन के बारे में हमने आपको बताया। हमने आपसे कहा कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, वो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर में प्रधानमंत्री या दीवान के पद पे कार्य कर चुके थे। उनकी पत्नी पुतलीबाई, जो उनकी चौथी पत्नी थी, उसी से गांधी जी पैदा हुए, उन्हीं से गांधी जी की उत्पत्ति हुई। और फिर गांधी जी की शादी एक व्यवसायी गोकुलदास माकन जी की पुत्री कस्तूरबा के साथ 1883 में कर दी गई। गांधी जी के 4 बच्चे हुए, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। इन 4 पुत्रों के अलावा उद्योगपति जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र के रूप में जाना जाता है। तो गांधी जी 1889 से 91 तक इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। 1892 में वे साउथ अफ्रीका एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए पहुंचे। उन्होंने इस मुकदमे में पैरवी की और दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर उन्होंने तमाम सारे डिस्क्रिमिनेशंस को देखा जो भारतीय यहां से जाके वहां बसे थे उनके साथ किया जा रहा था। 1915 जनवरी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए। इस दौरान गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग कुल 21 वर्ष 1893 टू 1915 तक का टाइम जोड़ लीजिए, नियर अबाउट 21 ईयर्स गांधी जी वहां रहे। कस्तूरबा गांधी पहली भारतीय महिला थी जो सरले कानून के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में जेल गई थी। इस कानून के तहत उस विवाह को दक्षिण अफ्रीका में वैध नहीं माना जाता था, वैलिड नहीं माना जाता था, जिसका प्रमाण पत्र उनके पास न हो। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले के विचार ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया। कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। पॉलिटिकल टीचर थे गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के। गोखले स्वयं महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940 टू 1918 के बीच चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में एम्बुलेंस कोर द्वारा मदद की, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 9 जनवरी 1915 को कैसर हिंद की टाइटल प्रदान की। युद्ध के दिनों में
गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट के रूप में भी कहने लगे, जानने लगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 21 मई 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कॉलिन बाख के सहयोग से वहाँ पर 30 में 902 में टॉलस्टॉय फार्म और 904 में डरबन के पास फोनिक्स आश्रम की स्थापना की। यहीं पर गांधी जी ने देश भाइयों की सेवा का व्रत लिया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान गांधी जी ने अपने उस समय जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकाला। यह अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। 5 भाषाओं में अखबार प्रकाशित होता था। गांधी जी ने भारत आने पर 25 मई 1915 को अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसे कालांतर में साबरमती आश्रम का नाम दिया गया, जिससे लोग साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। अब साबरमती आश्रम गांधी जी का मुख्य केंद्र बन गया, जिसे गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में गांधी जी की कस्तूरबा के साथ रहते थे। इस आश्रम की स्थापना में प्रसिद्ध उद्योगपति अंबालाल साराभाई ने महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग दिया था। गांधी जी ने 909 में लिखी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज या स्वशासन की विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने इस बात की चर्चा की कि किस तरह से स्वराज की प्राप्ति की जा सकती है। गांधी जी ने पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हिस्सा लिया था। दिनसा वाचन उस समय कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। कलकत्ता में यह सेशन हुआ। महात्मा गांधी उस सेशन में खुद लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, की जब मैं मंच पर चढ़ा, मुझे 3 मिनट का टाइम दिया गया था। जब मैं स्टेज पे चढ़ा, मेरी जबान लड़खड़ा रही थी, मैं लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ नहीं पाया और तब तक बेल बज गई, मैं नीचे उतर आया। तो स्टार्टिंग फेज के बारे में गांधी लिखते हैं कि मैं कितना शर्मीला था और मैं अपनी चीज़ों को करने में कितना कमजोर था। गांधी जी ने पहली बार इस अधिवेशन में हिस्सेदारी की थी 1901 में। इस बात का उल्लेख गांधी अपने ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में करते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम स्पीच, जन भाषण, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर दिया था, जहां वो पंडित मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण पर आए थे। यहीं पर उन्होंने अपने भाषण में पहली बार स्वराज्य पर अपने विचार रखे। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के हाथों हुआ था। भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 वर्ष संघर्ष, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में मजदूरों के साथ गांधी जी ने सफल नेतृत्व किया। गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा की उपाधि दी थी। सत्य, अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। यह था गांधी जी के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की। मैंने आपसे ये भी कहा कि गांधी जी का पहला मूवमेंट, गांधी जी ने जो पहला स्पीच दिया, मूवमेंट नहीं बल्कि स्पीच की बात करें हम, तो गांधी जी का पहला स्पीच जो वो दे रहे हैं वो बीएचयू में दे रहे हैं। गांधी जी क्या कहते हैं वहां पे? आपका पहला टॉपिक है अ लीडर अनाउंस हिमसेल्फ। इन जनवरी 1915 मोहनदास करमचंद गांधी returned to his homeland after 2 decades of residence abroad. These years had been spent for the most part of the South Africa.
where he went as a lawyer and in time became a leader of the Indian community in that territory. As the historian Chandran Dev Senan has remarked, South Africa was the making of Mahatma. It was in South Africa that Mahatma Gandhi first forged the distinctive technique of non-violent protest known as Satyagraha. First promoted harmony between religious and first alert upper caste Indians to their the discriminatory treatment of low caste and women. माय डियर, मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृहभूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए। 1893 की बात मैंने की थी और 1891 में वो बैरिस्ट्री पास करके दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने के लिए गए। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो यही बात वो लिखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका बिताया, यहाँ वो एक वकील के रूप में गए और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के एक नेता के रूप में उभरे। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवनेसन ने टिप्पणी की। चंद्रन देवनेसन ने ये बात की, उन्होंने लिखा कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में एक नया प्रयोग किया। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीकी का इस्तेमाल किया। यह वो जगह थी दक्षिण अफ्रीका जहाँ पे वो सफल हुए। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों के मन में निम्न जाति और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। माय डियर, 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय भारत में 1893 में जब वो यहाँ से गए थे तब और 1915 में जब वो वापस आए तब इस दौरान के बीच गांधी जी में बड़ा बदलाव आया। गांधी जी उस समय तक एक परिपक्व नेता के रूप में उभर के सामने आए थे। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था। भारत जब गांधी जी भारत आए थे 1915 में एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। 1905 to 1907 में स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसे व्यापक रूप से मध्यम वर्ग के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय आंदोलन ने पकड़ बना ली थी। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिसे महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय प्रमुख थे, जिन्हें लाल बाल पाल की संज्ञा दी गई। इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता है, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन नेताओं ने जहां कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक एक्सट्रीमिस्ट वे अपनाया, एक लड़ाकू प्रवृत्ति अपनाई, वहीं उत्तरवादियों ने, जो लिबरल्स का ग्रुप था, उन्होंने क्रमिक लगातार प्रयास करते रहे कि वो अपने सामान्य विचारों से ब्रिटिशर्स को प्रभावित कर लेंगे। इन उदारवादियों, इन लिबरल्स में गांधी जी के मान्य राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल टीचर गोपाल कृष्ण गोखले का भी नाम आता है। इनके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले के पर्सनल सेक्रेटरी थे। गांधी जी की ही तरह जिन्ना भी गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि के संबंध में बहुत कुछ समझ सकें, जान सकें। ऐसा ही किया। गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत के पहले 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया। पूरे भारत भ्रमण के दौरान वो
भारत के प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक जगहों पे गए और उन्होंने भारत की पॉवर्टी को महसूस किया, भारत की गरीबी को देखा। और तब गांधी को महसूस हुआ कि वास्तव में हम अपने लोगों को नेशनल मूवमेंट के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। माय डियर, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, अ लीडर अनाउंस हिमसेल्फ, इन माय नेक्स्ट वीडियो। हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हम गांधी जी के बारे में पूरी हिस्ट्री को एक बार फिर से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।